بادل ہوں یہاں کیسے تم نے کڈنیپ کیا مجھے جانا ہے. ماموں میرا انتظار کرو, اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, مجھے جانا ہے. دروازہ کھولو, کوئی ہے, دروازہ کھولو. لاک ہے. تم نے مجھے لاک کیا ہے مراد, مجھے تم یہاں پر بند نہیں کر سکتے. دروازہ کھولو. کوئی ہے نہیں کھلے گا تو کیسے نہیں کھلے گا؟ تو چپ نہیں. دروازہ کھولو مراد, تم اچھا نہیں کر رہے. دروازہ کھولو, جانے دو مجھے. یہ دروازہ اب شادی کے بعد ہی کھلے گا تو مراد, میں تم سے شادی نہیں کر سکتی. کیوں نہیں کر سکتی؟ تمہیں عزت دے رہا ہوں, نام دے رہا ہوں, اور کیا چاہیے؟ دیکھو, ضروری نہیں ہے کہ ہر رشتے کا انجام شادی ہو. نہیں کر سکتی میں تم سے شادی. تم خدا کے لیے جانے دو, نہیں جانے دو. تم نے شاید صحیح سے سنا نہیں دعا, میں نے کہا یہ دروازہ شادی کے بعد کھلے گا. میں نہیں کر سکتی تم سے شادی مراد. کیوں نہیں کر سکتی؟ یہی تو پوچھ رہا ہوں, کیوں؟ میرے پاس اس سوال کا جواب نہیں. میرے پاس ہے. تم ابھی بھی اذان کا انتظار کر رہے ہو. وہ تمہیں کبھی عزت نہیں دے گا, کبھی نام نہیں دے گا, تمہارا استعمال کرے گا اور پھینک دے گا کہیں. خدا کے لیے بس کر دو, مت بولو یہ سب باتیں, مجھے نہیں کرنی. تم ایک ناجائز رشتے کی وجہ سے جائز رشتے کا منع کیسے کر سکتی ہو؟ تو کوئی تصویر وغیرہ ہے آپ کے پاس؟ جی تصویر تو نہیں ہے, موبائل میں ہے. چلے میں فی الحال رپورٹ لکھنا شروع کر دیتا ہوں. بہرحال تصویر مجھے چاہیے ہوگی. میں آپ کو لا کے دے دوں. لڑکی کا نام بتائیں. دعا. بنتے جی ولدیت احمد حفیظ. چلیں ٹھیک ہے, تصویروں کے پرنٹ آؤٹ مجھے لازمی دیتے جائیے گا. جی ضرور, وہ میں دے جاؤں گا آپ کو. بہت شکریہ. انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے, مل جائے گی تو بتائیں گے آپ کو. شکریہ. جائز نہیں ہے, سنا تم نے, ناجائز نہیں ہے. نہ میری محبت ہے, نہ ہی یہ رشتہ. اور خبردار خبردار, اگر تم نے میری کتاب پہ ایک بار اور انگلی اٹھائی تو ہمارا انجام اچھا نہیں ہوگا مراد. رات کے اندھیروں میں تینکسی کی تاریک گوشوں میں جو رشتہ بنتا ہے وہ پاک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو تمہیں جواب دے نہیں, مجھے جانے دو. نہیں تو کیا؟ میں جی کے یہاں پر سب کو بلا لوں گی, اتنا شور مچاؤں گی کہ دنیا اکٹھی ہو جائے گی. اور پھر کیا ہوگا؟ تم چیخو گی, چلاؤ گی, دنیا کو اکٹھا کر لو گی, تو پھر کیا ہوگا؟ تو آپ, میں بتاتا ہوں کیا ہوگا. اس شہر میں ہر روز کئی لوگ مار دیے جاتے ہیں, کوئی نہیں رکتا, کوئی نہیں دیکھتا. گاڑیاں چلتی رہتی ہیں, کوئی نہیں رکتا. تو آپ, تمہاری بھی چیخیں لائق آ جائیں گی, کوئی نہیں سنے گا. اور یاد رکھنا, اس گھر سے چیخیں سننے کی عادت ہوگی یہ دنیا کو. مراد, میں تمہارے آگے ہاتھ چھوڑتی ہوں. تمہیں خدا کا واسطہ مجھ پر رحم کرو, مت کرو یہ سب کچھ. مراد, یہ صحیح نہیں ہے, بہت غلط ہے, تم اچھا نہیں کر رہے. دیکھو, خدا کا واسطہ مجھے جانے دو. چلی جانا. شادی کے بعد اگر میں انکار کر دوں تو میں اذان کو مار دوں گا, اس کی لاش ملے گی کسی کچرا کنڈی سے.
नहीं नहीं, तुम अजान को नहीं मार सकते। रोकेगा मुझे? चार आंटी, उन्हें क्या जवाब दोगी तुम? जवाब? उन्हें तो मेरे बहुत सारे हिसाब देने हैं। डैड, आपने नोट किया? सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे कि हमने सोचा था। हाँ बेटा, इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। दुआ भी खत्म हो गई और मानी भी चला जाएगा, और फिर हमारी जो प्रिंसेस हैं वो हैदर हाउस की क्वीन बन जाएगी। और आप किंग ऑफ हैदर इंडस्ट्रीज। ये बताओ कि दुआ है कहाँ? दुआ बेचारी बहुत तकलीफ में होगी। अब मुझे सताने की इतनी सजा तो बनती है ना। इसका मतलब है कि आसानी से हार नहीं मानेगा, वो लड़ेगा। वो लड़ेगा, झगड़ेगा, लेकिन फाइनली उसे मेरे आगे घुटने टेकने होंगे। आई मस्ट से तुम तो मुझसे भी ज्यादा क्रूर हो, मारती भी हो और रोने भी नहीं देती। डैड, मैं आप ही का तो अपग्रेड वर्जन हूं। ओह, फिर तो मुझे भी तुमसे डरना चाहिए। डरेगा तो आसान, और उसे डरना भी चाहिए। दुआ नाम का पत्थर मेरे दिल पर नहीं रखना चाहिए था उसे। मासूमा, मासूमा, मासूमा। जी मैडम। मैडम, आजान साहब, आजान साहब, देखिए मैडम को क्या हो गया है। आजान साहब, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? पता नहीं, अचानक से चकरा के गिर गई। कर गिर गई? आप बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखती हैं। जाओ बीपी ऑपरेटर्स लेकर आओ। मासूमा, अपने साहब को बोलो मुझे बीपी चेक नहीं कराना है। क्या हो गया आपको? क्यों बच्चों जैसी बात कर रही हैं आप? मासूमा, अपने साहब को बोलो मैंने दवाई खा ली है, मैं ठीक हो जाऊंगी। मासूमा जाओ यहां से। हम मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। तुमने मेरा दिल दुखाया है। अगर हैदर जिंदा होते तो वो ये सब होने देते क्या? तुमने इस घर में मेरा सारा ऑर्डर हिला के रख दिया है, हर तरफ बिखेरा कर दिया है। जब मैं संभालने की कोशिश कर रही हूं
बजाय मेरा साथ देने के तुम मेरी मुखालफत कर रहे हो। आखिर आप चाहती क्या है? कोई है? कोई है? मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मदद करो। कोई है? कोई है? प्लीज मदद करो, दरवाजा खोलो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। कोई है? हे जान, क्या कर लिया यार? बस थक गया हूँ भाई। खबरदार जो ऐसी बात फिर कही तो। मेरे होते हुए तुम नहीं थक सकते। बहुत तंग कर लिया आप लोगों को, इसलिए तो मामा मुझे भेज रही हैं। नहीं, वो तो तुम्हारा इलाज करवाने के लिए भेज रही है ना। आप कहते हैं तो मान लेता हूँ, वरना तो मामा इसलिए भेजना चाहती थी ताकि फेरी यहाँ से चली जाए। मामा जीत नहीं भैया, हम हार गए। माँ से जीत करना कुछ नहीं मिलता, उन्हें जीतने दो। लेकिन मैं तुम्हें नहीं हारने दूंगा। लेकिन वो तो चले गई भैया, आपने उसे रोका ही नहीं। बहुत देर कर दिया आपने, आप उसे समझ नहीं सके। समझ तो मैं बहुत पहले ही किया था, हिम्मत नहीं थी। अब हिम्मत भी आ गई है और हौसला भी। लेकिन वो चली गई है। अब वो नहीं है तो इस हिम्मत का क्या फायदा भैया? आपने उसके लिए तो बहुत देर कर दी, मेरे लिए देर मत करिएगा। कम ऑन, ऐसी बातें तो मत करो प्लीज। भैया मुझे वापस बुला लिएगा, मैं आप लोगों के बगैर नहीं रह सकता। मैं भी नहीं रह पाऊंगा। और दुआ को ढूंढकर वापस घर ले आइएगा। उसने तुमसे कुछ कहा है? मानी, तुम जानते हो वो कहाँ है? वो मुझसे मिलके नहीं गई भैया। मैं उससे नाराज होना चाहता हूँ, लेकिन मुझे उसकी मजबूरी का पता है। उसको ना चाहते हुए भी यहाँ से जाना पड़ा। और आप जब उससे मिलें तो उसे बताइएगा कि मानी उसका इंतजार कर रहा है। मैं खुद तुम्हें उसके साथ लेने आऊंगा। मैं इंतजार करूंगा भैया।
मुराद, हम उसे ऐसे घर में नहीं रख सकते। तुम जाके किसी डॉक्टर को ले आओ। डॉक्टर क्या कर लेगा? अरे बेटा, ड्रिप लगा देगा। मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है, वो तो कुछ खा पी नहीं रही है। जब भूख लगेगी ना तो खुद ही खा लेगी। तुमने मेरा दिल दुखाया है। अगर हैदर जिंदा होते तो वो ये सब होने देते क्या? और जब मैं संभालने की कोशिश कर रही हूं तो बजाय मेरा साथ देने के तुम मेरी मुखालफत कर रहे हो। मामा जीत नहीं भैया, हम हार गए। बहुत देर कर दिया आपने, आप उसे समझ नहीं सके। आपने उसके लिए तो बहुत देर कर दी, मेरे लिए देर मत करिएगा। जो रिश्ते दिन की रोशनी में निभाए नहीं जाते, उन्हें पता है ना क्या कहते हैं। बोझ बन गया अगर ये रिश्ता तो मुझे आजाद करते। नहीं सह सकती मैं ये जिल्लत। मेरी क्या हैसियत होगी? फिर से उसी एनेक्सी में उसी क्वार्टर में एक नौकरानी की तरह रहूंगी मैं। और कल को शायद मेरी वो हैसियत भी ना रहे। तो अच्छा है ना, बेहतर है कि ये फैसला आज हो जाए। बताया मैं क्या करूं? डैड, डैड, डैड आप आ गए। रियली मिस्ड यू। मैं भी तुम सबको बहुत मिस करता हूँ। मैं क्या करूं डैड? दुआ मिल नहीं रही है और मॉम मानी को लंदन भेज रही है। सबसे ज्यादा टफ कॉल, मॉम की तबीयत खराब है और ऊपर से वो जिद कर रही है कि मैं रुमाना से शादी करूं। वो दुआ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। क्या करूं डैड? मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मैं सब कुछ कैसे संभालूं? ये सब ऐसे होगा, मुझसे नहीं हो पाएगा ये सब, मैं नहीं कर सकता। डैड आप क्यों चले गए मुझे अकेला छोड़कर? मैं नहीं कर सकता हूँ ये सब। इसे वक्त में मुझे अकेला कैसे छोड़ दिया? तुम्हें करना होगा आजान। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत सच की होती है, जो बड़े से बड़े झूठ को तोड़ कर रख देती है। जिद जहां रही रोमाना कर रही है। तुम रोमाना को अपना सच बता दो, वो खुद ही पीछे हट जाएगी। और मानी? नहीं मानी की बात तो मानी को तो मैं खुद भी लंदन लेकर जा रहा था, है ना? तुम उसे समझाओगे तो वो समझ जाएगा, लेकिन सबसे पहले मेरी बेटी को वापस लेकर आओ आजान। वो बहुत तकलीफ में है। बहुत दिल दुखा है मैंने दुआ का, लेकिन बस अब और नहीं। मैं सब कुछ सही कर सकता हूँ डैड, मैं ही करूंगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डैड।
چائے کھا لینا. مجھے بھوک نہیں ہے. بھوک لگے تو کھا لینا. کس قدر بےحد سے سنگل انسان ہو تم. کوئی جیے یا مرے کوئی فرق نہیں پڑتا. تم یہاں جیو گی بھی میری مرضی سے دعا, اور مرو گی بھی میری مرضی سے. سنگل انسان ہو تم. بےحد حیوان ہو تم. جانور ہو تم مراد, جانور. جانور ہو تم. یہ لیجیے زرینہ بہن, آپ کا چیک. بہت شکریہ آپ کا مسعود بھائی. اس میں شکریہ کی کون سی بات ہے؟ آپ سے گھر خریدا ہے, اور پہلے بھی آپ کے شوہر تو راضی نہیں تھے. رفیق بھائی بتا رہے تھے کہ بڑی اشد ضرورت میں آپ یہ گھر بیچ رہی ہیں. ہاں, ابھی بھی شفیق بھائی ایمرجنسی میں کراچی گئے ہیں. اوہ, اب آپ کو کیا بتاؤں, آپ کے سامنے انہوں نے منع کر دیا تھا. اب ضرورت ہی ایسی پڑ گئی ہے. وہ ان کی بھتیجی ہے نا, اس کے سسرال والوں کا پیٹ ہی نہیں بھر رہا. ارے آج کل کے دور میں شفیق بھائی جیسے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, ورنہ کون آج کل اپنا بھائی گھر یوں اپنی یتیم بھتیجی کے لیے بیچ دیتا ہے. بس اپنی اولاد ہی سمجھیے. مجھے جانا نہیں ہوتا تو شفیق بھائی سے ضرور مل کے جاتا. اجازت دیجیے. السلام علیکم. رفیق بھائی, تھینک یو. ہم کب تک اپنے نئے سوسائٹی والے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے؟ بیانہ تو دے دیا ہے, بس یہ چیک اور جمع کرا دو. لیکن اتنی دور گھر کیوں لے رہی ہو بہن؟ رفیق بھائی, آپ اپنے کام سے کام رکھیں. کب سے میں اس گلے سڑے گھر میں رو رہی ہوں. مانا وہ گھر دور ہے, لیکن ہے تو بنگلے جیسا نا. ہاں, جہاں آ رہا کہ بنگلے جیسا نہیں ہے, لیکن اس گھر سے تو اچھا ہے, نیا ہے. اس گھر میں تو جیسے نحوست سی بس گئی ہے. وہ پتہ نہیں کیا کیا بولتی رہتی ہو بہن. یہ بتاؤ, شفیق بھائی کو سنبھال لو گی؟ سنبھال لوں گی. میرے شوہر ہیں, آپ کے نہیں. اب جائیں آپ. وہ بات بدلتی ہو بہن. ایک بات بتا دوں, کمیشن میں سے 1 روپیہ نہیں چھوڑوں گا میں. کہا نا, دے دوں گی آپ کا پورا کمیشن. اب جائیں آپ یہاں سے. ٹھیک ہے, چلتا ہوں. اللہ حافظ. بھائی پلیجر لائک آلویز. آپ لوگ جب بھی گھر آتے ہیں مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے. بھائی اس دفعہ تو میں اپنی پیاری سی بیٹی لے جانے آئی ہوں. ہاں, کیوں نہیں, یہ تمہاری اپنی تو ہے. بھائی میں تو سوچ رہی ہوں کہ انگیجمنٹ کے بجائے ڈائریکٹ نکاح کر لیا جائے. کیوں آزان؟ ہاں, یہ تو بہت اچھا آئیڈیا ہے. کیوں اذان؟ بھائی تم اتنے خاموش کیوں بیٹھے ہو؟ جہارا تمہیں زبردستی لے کر آئی ہیں کیا؟ ارے نہیں, آزان تو خود چاہ رہا تھا کہ ہم باقاعدہ آپ کے گھر رشتہ لے کے آئیں, اور لیکن بس مانی کی وجہ سے کچھ ڈیلیز ہو گئی. میں آپ لوگوں سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. ہاں ضرور, کیوں نہیں. ارے کیا کہنا ہے آزان کو, کچھ بھی نہیں کہنا. بس یہی تو کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ڈائریکٹ ریسیپشن ہو جانی چاہیے. کیوں آزان؟ اور اچھا ہی ہے نا, مانی بھی جانے سے پہلے آزان کی شادی اٹینڈ کر لے گا, ہے نا؟ بالکل, اب اور کتنا انتظار کرنا ہے.
जब दोनों को एतराज नहीं है तो फिर देर किस बात की? मुझे एतराज है। मैं ये शादी अभी नहीं करना चाहता। अभी शादी नहीं करना चाहते या मुझसे शादी नहीं करना चाहते? दोनों ही बातें हैं। आजान, होश में आओ, क्या बकवास कर रहे हो? आप दोनों सुनो, मैं ये शादी नहीं करना चाहता हूं। और इसकी वजह? मैं कोई वजह सुनना नहीं चाहता। नहीं डैड, इसको कह लेने दे। मुझे किसी का डर नहीं। तो फिर बोलो ना, बोल क्यों नहीं रहे? तुम दोनों चुप करो। मैंने ये फैसला कर लिया है कि नेक्स्ट वीक ही शादी होगी। क्यों डरते हैं आप? मैं कुछ ऐसा कह दूंगा जो आप सुनना नहीं चाहते। डैड प्लीज इसको पूरी बात करने दे। शायद ये आज एतराफ कर ही ले फाइनली कि इसका उस नौकरानी के साथ अफेयर था। हाँ भाई था, मेरा दुआ के साथ अफेयर था। मोहब्बत भी करता हूं मैं उससे। और शाप। चुप कर जाओ आजान, आगे एक लफ्ज मत बोलना। जहां रहा उसे बोलने दो। हाँ तो तुम शादी भी उसी नौकरानी से करोगे ना? हाँ। तो फिर तुम रहोगे कहाँ, ये सोचा तुमने? जब सर पे से छत हट जाएगी और इतना बड़ा बिजनेस जिस पे तुम इतना अकड़ रहे हो ये भी चला जाएगा, फिर तो सवाल करना बनता है ना। कहना क्या चाह रहे हैं? हाँ, इस बात का जवाब तो जहां आ रहा थी। क्यों, मैं सही कह रहा हूं ना? क्या मतलब? वो पेपर्स? एग्जैक्टली। जब आप इद्दत में थी, पावर ऑफ अटॉर्नी साइन किया था, पेपर्स नहीं पढ़े थे क्या? अच्छा जी। अब तुम्हारी तमाम प्रॉपर्टीज, तमाम बिजनेसेस मेरी बेटी की एक मुस्कुराहट का सदका है। मोहम तुम समाज उठे। मोहम आप ठीक तो हैं? मोहम आंखें खोले। मोहम आंटी मोहम 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 आर यू ओके? मोहम आंटी मुझे लगता है कि इनका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो गया। आप थोड़ा सा पानी। कोशिश भी मत करना हाथ लगाने की, दूर हटो। मोहम आप ठीक तो हैं? मोहम क्या हुआ है आपको? प्लीज आंखें खोले। मोहम तुम के पास मोम के भरोसे का तुमने गलत फायदा उठाया। नहीं छोड़ूंगा मैं तुमको, नहीं छोड़ूंगा। तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। मुझे मार के खुद फांसी चढ़ जाओगी क्या? मान लो आजान कि मैं एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन हूं, सारे रिस्क फैक्ट्स को देख कर ही लेता हूं, और तुम एक इमोशनल बाप के बेवकूफ बेटे हो। बिजनेस में इमोशंस काम नहीं करते। बिजनेसमैन का दिल नहीं दिमाग होता है, दिमाग। तुम्हें अभी ये सब कुछ वापस मिल सकता है अगर तुम चाहो तो। वरना वो रहा रास्ता, अपनी मां को उठाओ और चलते हुए नजर आओ। यू चीटर, मैं तुम पर फ्रॉड का केस करूंगा, कोर्ट में घसीटूंगा मैं तुम्हें। जहारा ने अपनी मर्जी से साइन किया है, मैंने थोड़ी ना फोर्स किया था। खैर एनीवेज, टॉपिक ये नहीं था। तुम आजान हैदर को नहीं खरीद सकते। हाँ, तभी तुमको कंगाल कर दिया। तुम्हारी बेटी में ऐसा क्या ऐब है जिसके लिए तुम्हें ये सब फ्रॉड करने पड़ रहे? आजान, एक और गलत जुमला एंड योर गेम इज ओवर। तुम्हें मैं 2 दिन देता हूं, सोच लो, दुआ या अपना बिजनेस वापस।
You may leave now. Go. Leave. चले। Don't worry, सब सही होगा. मॉम, मुझसे क्यों मुंह फेर रही है? बात तो करें। बचा क्या है बात करने के लिए? कुछ भी तो नहीं। ना ये घर रहेगा, ना बिजनेस, ना प्रॉपर्टी, और ना तुम्हारी जहां रहा। मॉम, ऐसा तो मत कहें। दुआ के होते हुए मैं रुमाना से शादी कैसे कर सकता हूं? ये तो चीटिंग होगी, दुआ के साथ भी और रुमाना के साथ भी। वजाहत और रुमाना पहले ही बहुत खफा है। शादी की खबर तो रुमाना पता नहीं कैसे लेगी। जज्बात में आके रुमाना ने कोई गलत कदम उठाया तो वजाहत तो हमें नहीं छोड़ेगा। मॉम, मैं दुआ से सचमुच बहुत मोहब्बत करता हूं, और रही बात वजाहत अंकल की तो वो समझ जाएंगे। आई एम श्योर के। और तुमने ये क्या मैस क्रिएट किया है अजान? कसम खाओ मेरी, कसम खाओ कि तुम उस दुआ को भूल जाओगे। ये भी भूल जाओगे कि तुम्हारी उससे कभी। प्लीज ऐसा तो मत कहें। ऐसा ही होगा अजान। अगर ये घर, ये बिजनेस, ये प्रॉपर्टी कुछ नहीं रहा तो मैं भी नहीं रहूंगी, समझे? आप कहीं। हाँ हाँ, ये तय है कि इस घर से मेरा जनाजा ही निकलेगा। तुमने उस दुआ के लिए मेरा सब कुछ दांव पर लगा दिया। क्या हो तुम आजान? मेरा हाथ तुम्हारे सर से और हैदर का नाम तुम्हारे नाम से हट जाए तो तुम कुछ नहीं हो। क्या हैसियत है तुम्हारी? सिफर हो तुम आजान, सिफर। तुम्हारे पास है क्या? हाँ, एक मामूली सी बैचलर्स की डिग्री जो हर दूसरे बच्चे के पास होती है। तुम जिसके साथ जुड़ जाओगे उसको बेहैसियत कर दोगे, और जहां रहा बेहैसियत होकर मरना भी नहीं चाहेगी। तब आ जाओ यहां से, चले जाओ यहां से। Get lost! बादल करे हर पल हसीन, सिर्फ ग्रीन।